So good evening everyone. Namaskar. I am Parimal Agrawal. So I am from Axis Bank. We as Axis Bank value our customers' views and opinion, and so we have kept a form at your desk. So please fill up that form and request you all to go and fill it and hand over to the registration table at the end of the session. So without further ado, I would like to invite on stage our keynote speaker, Dr. Ajay Datta, Managing Director, Data Group of Industries, Chair, Universal Acceptance Steering Committee, ICANN. Dr. Datta is an award-winning techno-commercial founder and CEO of multiple technology companies and manages all business of family. Data Exent Technologies received global recognition for bringing first-of-its-kind linguistic email address technology supporting email IDs in Hindi, Gujarati, Tamil, Telugu, Chinese, Marathi, plus 20 more languages. He had been investing and mentoring startups and very actively contributing to the entrepreneurial ecosystem. He regularly speaks on various platforms like IGF, TIE, iSpread, NEN, ICANN, FICCI, CII for entrepreneurship, internet governance, universal acceptance, technology and innovations. He is currently part of Government of India team to break language barrier and advise policy for multilingual internet for India. He became the first Indian Asian to be elected as chair of the global organization, the Universal Acceptance Steering Group. Dr. Datta is the managing director of Data Group of companies with a team of 3,000 plus employees, and a sought-after leader by young entrepreneurs for mentoring and guidance. Recently, Dr. Datta has been awarded as Vaishya Bhushan by Honorable Chief Minister of Rajasthan. So please join me in welcoming Mr. Ajay Datta on his stage. Welcome, sir. Thank you very much, Axis Bank and DNB, for inviting me and meet all of you. I have been given some briefing to talk to you in a particular format. I will try to not bore you and speak what I'm supposed to speak and share a little bit about what's happening, what's future, and what our journey have been and achieving from almost zero turnover to 2,000 crore rupees turnover last year we did. We are in a very different time before I come to the journey. Why? Because the innovation technology is impacting everyone. We are in a world where the biggest taxi owner, biggest taxi operator do not own any taxi, an Uber as an example. Biggest room seller, hotel room seller, do not own any hotel like Oyo. Biggest pharmacy seller do not own any pharmacy. We know the many apps available. Biggest e-commerce portals do not own shops, do not manufacture anything. They became the retailers of the world. The world has changed. We like it or don't like it. Now the option is, do we adopt it faster, quicker, and learn the new rules of the business, new game of the business? It's a completely new rules, which are getting written, which are changing, which are very important. And that brings me to tell you the perspective of how we started. So I come from a village called Khairthal near Alwar. वहीं पे ही मेरी पूरी स्कूलिंग हुई, वहीं पे मैंने पूरी पढ़ाई की, एंड कॉलेज में आना था तो कॉलेज में आ गए जयपुर. That's how I came Jaipur, first time in a commerce college. And we had a manufacturing unit of edible oil in Khairthal. That was the only unit we had at that time to manufacture mustard oil. And that started very late, because when I grew in the school, we used to have a आड़त की दुकान at that time. And ये हमारा फैक्ट्री लगना भी एक कहानी है कि किसी के पास पैसा रह गया था और उसके पास तेल की फैक्ट्री थी तो हम तेल की फैक्ट्री ले आए उससे. He could only give that. And that's how we started the oil mill also. So it's not
a planned structure at that time. I came to Jaipur and I was alone and I was studying. During that period, we came to know about that there is a SICK unit, and at that time I was doing my MBA in computer applications. And it was not a thought that I am going to do my business in technology. It was just that internet was taking shape at that time in the world. And you will read it through newspapers, there is something like internet in this world, there is something like technology in this world. And computers may be a very interesting thing to understand what it is all about. And coming from an oil background, this is a complete different thought process which had, and I had enough time because classes तो college में लगती नहीं है, आप सबको पता ही है. So and you are alone, so what do you do? So घर के पास में एक computer institute था, तो I joined that, and that is where I did my first post-graduation diploma in computer science, and then I joined MBA. And during MBA, I got an opportunity to do the project in a SICK unit. The idea was very simple, and I chose myself a SICK unit because of a very simple idea. Why the businesses go SICK? बिजनेस सिक जाने का कारण क्या है? बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें तो प्रॉफिट कमा ही रहे हैं, तो सिक क्यों जा रहा है? दैट्स इज अ गुड आइडिया टू सी फ्रॉम अदर साइड so that we don't do those mistakes. That's the reason I joined that company to do a project. And when I reached first time there to the plant, that was under lockout, and there were labor issues with the management. And I was doing my project, and I did my entire project on electronic data processing, so that we know through data what were the problems, why it became loss-making, where the cost was going, where the profit was going. And I learned in a very early stage of my life that data is extremely important. Just because my surname is data does not make it important. Just because we have the data which gives us the real picture of everything. And this gave me a feeling that there is an opportunity in this company. There is an opportunity in this industry. And with the discussion and as the time changes, as the opportunity comes, we took over that unit. And that became my first business. Not the edible oil, which was my family business, manufacturing bone china crockeries and electric insulators. That was my first exposure to doing the full-fledged business, which I ran for 6-7 years. Why the context is very important. When you are building that kind of business in year 1993, 95, 94, imagine there is no phone, there is no internet, there is no guidance. So internet नहीं है तो आज तो सब लोग अपना कोई भी information लेनी हो तो WhatsApp पे मिल जाएगी, नहीं तो Google कर लो. सबके पास है. Everybody knows that, including the driver and the servants. I call it ABCD के पास है, आया भाई चौकीदार driver, और हम सब लोगों के पास भी है. Highest class of the persons. So the question is, this has leveled the access to the information, but at that time, the information was a very, very precious thing and available to only few, available to only people who are connected well. And that is what makes it extremely difficult. So the rules of that information access was very different at that time than today. So Jaipur Glass chalu hua, and I used to move the whole country. Flight was not as convenient as it is today. 1 or 2 flights at that time. So only travel by train or a bus. So I traveled almost every country, set up the distributor network, set up the dealers network. And during that period, I also realized that communication with my own dealer is very difficult. Because घर पे एक ही टेलीफोन है, वो दादाजी के रूम में है, तो आप बात भी कैसे करोगे आप? मोबाइल फोन्स आए हमारा 97 में पहली बार मेरे पास. 32 रुपीज़ इनकमिंग चार्जेस हैं, आउटगोइंग चार्जेस हैं, 16 रुपये इनकमिंग चार्जेस हैं. So it is almost not viable to use that phone very regularly. That makes you feel today you are in the luckiest time of the world in comparison. That time you can't even communicate to your own dealer, to your own employees, to your own distributor. You can't send any message. Everything is so damn expensive. It was a privilege. So जब मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया पहली बार,
So it used to be used only for incoming missed call notifications. Lot of people can relate to it. आप फोन उठाते नहीं थे, पता है तो आप कॉल काट के लैंडलाइन से कॉल बैक करोगे. That's the time, at that time when the things were building up. And then the life-changing event happened. Patrika was the leading newspaper, and I saw an ad in Patrika by Satyam in September 1998 that you can become a partner of Satyam by opening an ISP in Jaipur. I did my doctorate also in between of electronic data processing. I did my MBA in computer applications. So I did quite a bit around technology and computers. And I applied for it. I had time. The company was having difficult time because of the labor union. It was all sorted. It was doing well. It was turning profitable. But I thought that, and the requirement was only two in that ad. 25 लाख रुपए होने चाहिए and 250 स्क्वायर फीट एयर कंडीशन होना चाहिए एरिया, तो आप कर सकते हैं. टोंक रोड ग्लास फैक्ट्री आप सब जानते होंगे. दैट इज़ वेयर आई यूज टू वर्क. आई यूज टू सिट देयर. स्टिल माई ऑफिस इज देयर. एंड आई अप्लाइड फॉर दैट पार्टनरशिप. तो कैसे अप्लाई किया होगा आप सोच सकते हैं. नाइदर ए वेबसाइट नॉर एन ईमेल ऑब्वियसली, राइट. तो यू टेक द कटआउट ऑफ दैट पेपर. उसी में फॉर्म था भरने का, और वो फॉर्म भर के आपको कोरियर करना है. दैट वाज द टाइम व्हेन वी अप्लाइड दैट ISP पार्टनरशिप. एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंपनी. दोज नंबर्स वर देयर एंड दे केम टू अस. दे केम टू जयपुर. And when I went to meet them, I saw who's who of Jaipur sitting in that room. And they were taking interviews. My intent was to have a good internet for myself. So I went back. इंटरनेट मिल ही जाएगा. ये सब वो लोग थे जिनके अखबारों में मैं नाम पढ़ता था, सुनता था. सब वो लोग थे जिनके स्टेटमेंट छपते थे जयपुर के. एंड रात को उनका मेरे पास कॉल आया कि वी वांट टू मीट यू ओवर डिनर. And to cut the story short, they selected me as a partner. At midnight at 11, we went to our office, Jaipur Glass, जहाँ मैं बैठता था. And I called the accountant to cut the check. 1 लाख रुपए सिक्योरिटी देना था खाली. But I cut the check. It is lying on my table, and they gave me a document. And the document said on the top, distributorship agreement. And that is what. Probably my understanding was too much, because I was looking for partnership and they were giving me distributorship agreement. And that is where we cut our relationship, that I need a partnership agreement. I followed for a month, and one fine day I heard the statement, ये तेलियों का धंधा नहीं है, टेक्नोलॉजी बिजनेस है. Either you agree or you stop calling. So that took my sleep away. The kind of character I am, that this is how somebody can think that I can't do a certain kind of business. And of course, this is also true for all of you, right? Nobody can define what business you can do or you cannot do. This is up to me. So a challenge made me more towards that. And after 2-3 days, it was, I remember a Saturday evening, I called them that you have till Monday to agree on partnership or face competition. That is where the IT journey started. And obviously, Rajasthan was the only state where Satyam was never number one. We always remained number one, and we always beaten them. I will tell you the strategy at some point of time, how we continued fighting that battle with a 1,000 times bigger company than us, in terms of money, in terms of power, in terms of knowledge, in terms of technology. That gave me a huge learning, because I also had a time that it is not about the size which matters when you are fighting your own space. It is about the will and the hard work and the strategies which you put in place.
And for them, Jaipur was a very far off state. Rajasthan was a far off state among the whole country. So it was not a very difficult for us to fight that battle there. And that made us stand, and we exist today, and Satyam do not. You all know that. And we always remained profitable, we always remained active, and we, at one point of time, before the telecom revolution took place to start internet services, we were the 6th largest ISP in the country, as per TRAI Government of India report. 6th largest we became one time, and then the things completely changed when the mobile broadband started coming in. And then the whole game of ISP, whole game of internet, and the telecom completely changed from 2006, 2007 onwards. This journey tells me two things. One, that no matter how bigger the competitor is, if we fight our battle well, without worrying about the size of the competitor, you can win that battle. You can fight your own battle in certain ways. And as the God decides, I do not know why it happened. The products which I created in software, so we have a product called XGen, which is a next generation email platform. My competitor is Microsoft, Google, and IBM. We created a Spam Jadoo, which is an anti-spam product. My competitor is Barracuda and McAfee and Norton, the world leaders. I don't know how it happened. And this just so happened that we are fighting with the world's biggest and still keep our space there in this area. And when we meet on a common platform, on an email-related events and exchange-related events, we jokingly talk, why you are doing this? So my business is not about 94% of the world. My business is about 1% of the world. But that's a huge pie for myself. Can we grow it? Answer is yes, we can do more. We can do more bigger. We can do much better. We are the only player in Asia who has this kind of technology in this area. In 2014, another life-changing event happened. So Government of India sends a letter to all the brand owners. So we owned a brand in a scooter, an Ashoka brand in mustard oil, that you can protect your domain names. Because Government of India was coming up with a policy to register your domain names in the language of your choice. So, आप लोगों को कितनों को पता है पता नहीं है कि domain names आप अपनी भाषा में भी register कर सकते हैं. Just like axisbank.com is in English, it could be axisbank.bharat in Hindi, and so as in all the 22 languages. That is technically today possible from 2014 August. We got a letter and we registered our brand. And I was surprised. I got a domain name, but I could not configure in my own email server. As I shared, we built our own email product. And that is what made us think that we have a problem in our software. So I tried Google, it didn't work there. I tried Microsoft Exchange, it didn't work there. I tried in China, QQ.com. And I tried Tencent in China, which didn't work there. I tried in Russia, all companies, large players, where language is the primary, first language. So top 10 countries I picked up where the primary language is not English. It should work there, it didn't. So that gave us an opportunity to look at that segment of email platform to support those domain names. And I am happy to share, sitting in Jaipur, we became the world's first linguistic email service provider at a world level. We became the global innovator in that area. And of course, my Government of India gave us award and world recognized us. And that is what led us lead the global organizations. So I'm just sharing with you how one
thing lead to the another. So there is an organization called Universal Acceptance Steering Group under ICANN. So let me take 30 seconds to share about ICANN as a knowledge. It will be interesting for you. You know all domain names, right? सबको पता है domain names होते हैं, सबको पता है IP addresses भी होते हैं, right? तो domain names और IP address, domain names को names बोल देते हैं और IP addresses को numbers बोल लेते हैं. So ICANN एक organization है word की ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. You understand, names is domain names, numbers is IP addresses. They come from where? आपने कभी सोचा ये आते कहां से हैं? कौन देता है? कौन गवर्न कर रहा है वर्ड में? So this is the organization which governs the whole world, worldwide. वहां से ये अलोकेट होते हैं, उसका एक प्रोसेस है. वहाँ से हर कंट्री को लोकेट होते हैं, रजिस्ट्रीज को लोकेट होते हैं, वहाँ से टेलीकॉम के पास जाते हैं, टेलीकॉम से हमारे पास आते हैं. दैट इज अ प्रोसेस. इट्स अ गवर्निंग स्ट्रक्चर रन बाय वॉलंटियर्स. 2018 तक अमेरिकन गवर्नमेंट इसको ओन करती थी. 2018 के बाद दिस इज इन फ्री हैंड्स बाय द वॉलंटियर्स. उसकी एक बॉडी है ICANN, UASG, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, जिसमें 650 कंपनीज हैं वर्ड की, जिसमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर, फेसबुक, यू नेम द कंपनी दैट इज देयर, यू विल नो ऑल द कंपनीज. उसका चेयरमैन अब मैं हूँ, इंडिया से पहली बार, एशिया से. दैट लेड टू बिकॉज ऑफ द इनोवेशन विच वी डिड. इंडिया led that initiative worldwide and now it is leading that worldwide. And government of India is now creating a policy around multilingual internet, because for all of you to know, 85% of the people do not know English in the country. So जिसको English नहीं आती है वो axisbank.com खोलेगा कैसे? That's the question. So जो अगर खोल नहीं पाएगा, चाहे हिंदी में कंटेंट हो, मेरा डोमेन नेम तो अगर इंग्लिश में है तो मेरा वहीं पे उसका बैरियर ब्रेक हो गया. तो आप देखेंगे अखबार में ऐड आते हैं आज की तारीख में हिंदी के, तो उसमें ईमेल एड्रेस और डोमेन नेम अभी भी हिंदी में ही मिलते हैं आपको, पूरा कंटेंट हिंदी में है. तो अब आप अभी अपना अखबार जाके देखेंगे कल, उसमें एड्स देखेंगे तो सारा हिंदी में मिलेगा, ये 2 चीज़ें इंग्लिश में मिलेंगी आपको. दैट इज़ द लैंग्वेज बैरियर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रेक नाउ. In that, the email part innovation, we are trying to lead with the government there. That's the nutshell theory of and story about my journey from the village to the global leadership around that area, and then becoming the global leader into that space, which is very, very important for the world, because 75% of the world, India is 85% do not speak English, 75% of the world do not speak English. So that population need to come online. That should bring a bell in your mind that हम उनको अगर ऑनलाइन सर्व करना है तो हम कैसे करेंगे? That population. Can there be a new Amazon? Can there be a new Paytm? Can there be a new 1MG? Can there be a new Ola? Can there be a new Uber? For that part of the world. अभी तक जितना इंटरनेट आप देख रहे हैं, ये इंटरनेट उसके लिए देख रहे हैं जिनको इंग्लिश आती है. तो 15% कोर हैं, और ऐसा सरकार का डेटा है कि करीब 15% और ऐसे लोग हैं जो स्विंग करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, ABCD जानते हैं, वो पढ़ लेते हैं. बट 70% people are not confident, even if they know GO go होता है, but not confident to click on a link, click on a site or understand what is written there. That's the government of data is available, and hence we need to all prepare for future. All of us have to prepare for future to see that we are in a right direction. आप लोग जो है एक MSME का हिस्सा हैं. Can I have water? We are all MSME. कितने MSME हैं कंट्री में? किसी को आइडिया है? You are part of that MSME crowd. 6.4 crore. That's it. आप उसका हिस्सा हैं. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो सिर्फ उतने का हिस्सा हैं आप. तो इमेजिन सिर्फ इतने से एंटरप्रेन्योर हैं MSME में, उसमें से हम हिस्सा हैं.
और एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह से डिवाइडेड है, और वो प्रॉब्लम एरिया में मानता हूं, और ग्रोथ का पाथ अवेलेबल है कि 94% ऑफ 6 करोड़ इज माइक्रो, ओनली 5% of this is medium and small, and 1% is large of MSME. Imagine that we are talking about the upward is available too much. All 94% can grow, which is a large number. And imagine if 94% can grow, then see the perspective. 30% of our GDP gets contributed by MSME, right? If this percentage gets contributed by another 94% to become medium, who will stop India to become 8 trillion? We are talking about 5 trillion. No one. And there is an opportunity. So लोग क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछते हैं कि ये कंजप्शन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, जनता तो उतनी है। तो लेकिन हमको ये समझना चाहिए द ट्रेंड इज चेंजिंग। किन किन के पास एक ही जोड़ी जूता है कोई ऐसा जन यहां पर इसके पास एक ही जोड़ी जूता हो, एक ही कोट हो, एक ही शर्ट हो? द ट्रेंड हैज चेंज्ड. It used to be 1 or 2 pair. Now people have 5 pairs. So it is not about population have increased. It is about number of items getting consumed by that person have increased. That is how we have to see. And everything. हम सोच भी नहीं सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिल रहा है, दाल चावल, आपको सबको पता है, राइट? कोरोना से चालू हुआ है। वो खाना कैसे पकाएगा? जिसके पास खाने को ही नहीं है वो अभी तक चावल पकाएगा कैसे? चावल पकाने के लिए चाहिए क्या? चाहिए चावल पकाने के लिए कुकर. डू यू नो द कुकर कंपनीज सेल्स हैव रॉकेटेड कितना परसेंट? 500%, 700%, 1000%. Do we even know this data? The world is changing. We don't even realize what is happening around us. How many of you are registered on JAM? कोई नहीं. Why not? Few of them. Okay, good. Business मिल रहा है. अगर जैम पे आप नहीं हैं तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. जैम पे जाना पड़ेगा. कंज्यूमर सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपनली वहां से सप्लाई हो रहे हैं, बिड हो रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं. करीब 11 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं, करीब 1.25 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं उसमें. आप सोचिए 1.25 करोड़ लोग रजिस्टर हैं और लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है. You are not in this part of that competition. Imagine that आपके बगल में बिजनेस हो रहा है और हमारे को पता ही नहीं है. So the competition is not nearby shop anymore. Competition is not about nearby colony anymore. Competition could be coming from Visakhapatnam sitting in Jaipur. If we don't realize this, we will have difficult time. And time is not very far. Nobody can be spared. Neither me, nor Nokia got spared, nor BlackBerry got spared. The examples are in front of us. If you do not change and adopt, so imagine the automobile companies do not adopt EV, for example. How long you will survive that business? This will get killed. If you are an automobile dealer, स्पेयर पार्ट का काम करते हो, रिपेयर का काम करते हो, मेंटेनेंस का काम करते हो, आपको तो ईवी पे चेंज होना ही पड़ेगा और आज तैयारी करनी ही पड़ेगी अगर आपको फ्यूचर प्रूफ होना है तो. अदरवाइज somebody else will come near to you, he will start EV and आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब वो सारा बिजनेस वहां शिफ्ट हो गया, पता भी नहीं पड़ेगा. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट.
and understand the world is changing extremely fast. मैं ये बात 3-4 बार रिपीट करूंगा so that आपके जहन में सब में आ जाए. World is changing faster than you think and it will impact your business faster than you can think. अगर ये बात भी आप सब लोग मेरी बात समझ के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस बात के लिए थैंक यू देंगे कि एक्सिस बैंक को थैंक यू देंगे कि उन्होंने आपको ये बात ध्यान में डाल दी. It is going to impact everyone. It is not going to leave anybody. And when it impacts, it is ruthless. No mercy. It impacts hard. It does not give you chance. So it is extremely important to get ready faster. जो younger generation बैठी हुई है उनके लिए, from the security point of view. And let us, and you will all appreciate that thought which I have. जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो हमारे जीडीपी का परसेंटेज क्या था वर्ल्ड में? किसी को आइडिया? 3%. ओनली 3 वर्ल्ड में. हमारा 1700 सदी में क्या था कंट्रीब्यूशन? मैं बात कर रहा हूं करीब 300 साल पहले, 200 साल पहले, 247 साल पहले टू बी प्रिसाइज. क्या था हमारा कंट्रीब्यूशन? 29%. What happened to 29 to became 3? Because of policy of the Britishers. Policies can kill. Policies can destroy. The countries, हम कुछ भी नहीं है. Hence, we have to align with the policy. It is extremely important what is changing around us. If we do not align, then the things become extremely difficult and ruthless in our lives. And we miss the opportunities. मैं कोई डराने नहीं आया आपको. I am just trying to tell that these are the data which is available around us. मेरे खाली मुझे ही नहीं पता है, सबको पता है. क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस पर एक्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको सोच रहे हैं, क्या हम उस पर कुछ समाधान निकाल रहे हैं. That's the important part which we have to see. की चैलेंजेस की बात करते हैं. चैलेंजेस क्या हैं आज एमएसएमई में? और अगर आपके कोई चैलेंजेस हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं उसको भी ड्यूरिंग द इवेंट, आफ्टर द इवेंट. मेरे को लगता है आज की तारीख में डिजिटल अडॉप्शन इज अ बिग चैलेंज. हम एडिबल ऑयल का काम करते हैं, तो हम फॉर्चुनेट हैं कि एडिबल ऑयल एंड आईटी बोथ आई लुक आफ्टर, सो आई कैन ब्रिज दैट गैप फास्टर. चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो कैमराज हो, चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, सब हम बहुत जल्दी से अडॉप्ट करके लगा लेते हैं, क्योंकि हमको किसी को समझाना नहीं है कि इसका ये बेनिफिट है, इसका ये आरओआई है. तो मैं बहुत दोस्तों को ये फीडबैक दे चुका हूँ और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अपने नॉन आईटी बिजनेसेस चलाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ आप में से बहुत नॉन आईटी बिजनेसेस वाले भी होंगे. अगर अपने प्रॉफिट का 2%, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट का, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, 2 रुपया आप ईयर मार्क कर लें कि आपको डिजिटल अडॉप्शन पे लगाना है. यू विल ग्रो every year and you will get return multiple times of that investment. चाहे आपको सॉफ्टवेयर लगाना है, चाहे आपको सिक्योरिटी पे लगाना है, चाहे आपको मॉनिटरिंग पे लगाना है, रिपोर्टिंग पे लगाना है, डैशबोर्ड बनाना है, एमआईएस बनानी है, बंदा हायर करना है, कंप्यूटर्स अपग्रेड करने हैं, सर्वर लगाना है, क्लाउड पे जाना है, वट एवर यू वांट टू डू, इन्वेस्ट दैट अमाउंट. Extremely important. If you will not invest that amount, what will happen? हमको ये सिखाया जाता है हमारे मेंटर्स के द्वारा, और ये बात हर बार सिखाई जाती है जब भी हमारा मेंटरिंग सेशन होता है. When I meet Mr. Pai और राजानंदन और people like them, they say to be where you are, you have to run. क्या बोलते हैं? जहां हो वहां रहना है अगर, तो दौड़ लगाओ, क्योंकि सब स्प्रिंट लगा रहे हैं आपके साथ, वो आगे निकल जाएंगे. आपको दौड़ लगानी है, तो दौड़ लगाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का रास्ता लेना ही पड़ेगा, चारा नहीं है.
जब आप सो रहे हैं तो भी आपका बिजनेस काम करना चाहिए, आपकी असेट काम करनी चाहिए, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो रिटर्न प्रोड्यूस करने चाहिए। आज आपको गैप नज़र नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक लोग हैं जो इन्वेस्ट कर देंगे तो उनकी असेट्स जो है प्रोड्यूस कर रही होंगी रिटर्न, एंड दे विल हैव ए बिगर कैपेबिलिटी देन यू हैव टू इन्वेस्ट, टेक डीलरशिप, टेक मार्जिन, टेक कस्टमर्स, एडवर्टाइज, वट एवर दे ऑल थिंग्स। तो मैं जनरल बातें आज आपसे नहीं करेंगे कि जो आप सब लोग करते ही हैं, अखबार में ऐड देना है, पर्चे बांटने हैं, फेसबुक पे ऐड चलाना है, ये सब कोई भी बता देगा, कर सकते हैं जब भी आपकी नीड है। When it is required, and how do you fight with a person who can give 10 ads and you can give 1? How do you build that capability? That is what is required to fight and learn more quickly than before. And technology is a game changer for every business. It doesn't matter which business. It doesn't matter which business you are in. आपको उस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, चाहे आप एनजीओ चलाते हैं, एंड वी टॉक टू लॉट्स ऑफ एनजीओज, वी वर्क विद देम, दे आर इम्प्लीमेंटेड टेक्नोलॉजीज टू मॉनिटर देयर grants, monitor their expense, monitor their customers, monitor their beneficiaries. They use technology and then only you can know. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमारे को ऑयल में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, एंड वी हैव टू ऑपरेट इन मल्टीपल स्टेट्स। तो ये तो बहुत आसान है, चूंकि वी हैव फंड्स अवेलेबल, तो सैलरी 2 आदमी रख लो तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास भी पैसे हैं सैलरी बांटने के लिए, तो आदमी तो किसी को भी हायर किया जा सकता है और वो सैलरी पे आ ही जाएगा। द की इज हाउ डू यू मॉनिटर हिम, हाउ डू यू मॉनिटर द रिजल्ट। एंड रिजल्ट आपको सबको पता है, जब भी हम कोई नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो पहले दिन नहीं आते हैं, ये आपको सबको पता है, उसमें टाइम लगता है, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकता है। सो हाउ डू यू ग्रूम दैट पर्सन, हाउ डू यू मॉनिटर दैट पर्सन ही इज वर्किंग फॉर यू, हाउ डू यू एंश्योर दैट ही इज डिलीवरिंग द राइट रिजल्ट्स। यू रिक्वायर ए टेक्नोलॉजी सपोर्ट। एक स्टेट में अगर 15 लोग हैं और 15 को मॉनिटर करना है, और 6 स्टेट में 15 लोग हैं तो 90 लोग हो गए, हाउ डू यू मॉनिटर 90 पीपल? डज दस रिंग योर बेल कि आपको 90 लोगों को मॉनिटर करना है, 100 लोगों को मॉनिटर करना है, तो कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, एंड आई थिंक एक्सिस बैंक इज अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल टू टेल यू when you meet them again, because you are probably their customers, that how do they manage their workforce, their accounts? Can they manage this entire thing without the help of a technology? Answer is no. Our answer is impossible. There used to be a time, एक्सिस बैंक ने तो वो नहीं देखा होगा शायद टाइम, कि जब there used to be a strike to do the computerization. हम सबको पता है, एसयूबीजे में स्ट्राइक हो गई थी, पीएनबी में स्ट्राइक हो गई थी, आपको सबको पता है ये स्ट्राइक्स हो रही थी कंप्यूटराइजेशन के लिए। आज अगर आप कंप्यूटर हटाएंगे तो स्ट्राइक हो जाएगी। द कंप्लीट चेंजेस हैपेंड, राइट? द प्रोडक्टिविटी हैज टू इंक्रीज विद टेक्नोलॉजी इनपुट, इट विल इंक्रीज, इट हैज टू इंक्रीज, एंड इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक्सेस टू फंड्स इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर एनी बिजनेस। मैं ऐसा मानता हूं कि बैंक, और हम इसको ट्रूली फॉलो करते हैं, बैंक इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पिलर फॉर एनी बिजनेस यू आर इन। ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद द बैंक, दैट्स माई फिलॉसफी आई एम टेलिंग यू, वेदर इट इज अ गुड टाइम और अ बैड टाइम। दे आर द ट्रू पार्टनर। विदाउट ए गुड बैंक it is very, very difficult, extremely difficult to grow. Do not cheat. Commit what you can do. Do not fudge. It pays you long run. It pays you in long term. It is extremely important to understand that. If we follow those things, the right things pays. Bank understands that he's a true businessman, he is struggling, they will help you. He is fighting
the battle, he will fighting the market conditions, he will help you, bank will help you. If bank has iota of doubt, छोटा सा भी अगर doubt होगा, तो bank will withdraw. And that will be the most difficult time for you to have your business. Hence, it is very important to understand bank is an extremely good partner, extremely solid partner. सोचो आप जो आपको पैसे दे रहा है वो तो पार्टनर मानना ही चाहिए ना, क्यों नहीं मानना चाहिए? वो उसको चाहिए क्या? ब्याज ही तो चाहिए, 8-9-10% वट एवर इट इज. वो पैसे दे रहा है, आपके साथ भी बैठा हुआ नहीं है. इमेजिन यू हैव ए इन्वेस्टर लाइक मी, जो आपसे बोर्ड सीट भी मांगेगा, चेक साइनिंग अथॉरिटी भी ले जाएगा, आपके हर खर्चे को ध्यान रखेगा. पैसे मिल सकता है लेकिन रिस्क भी पूरी होगी उसमें. यहाँ पर आपके पास में वो आता ही नहीं है, आपसे हर महीने हिसाब मांग लेगा और ब्याज दे दो, मस्त रहो, बढ़ाता रहो अपने बिजनेस को. ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचने के तरीका है कि बैंक को हम स्ट्रॉन्ग पार्टनर माने. एंड ये चैलेंज मानता हूँ मैं एमएसएमई में कि वो बैंक को अपना स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं बना पाते हैं. जो बना लेते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, वो स्मॉल से माइक्रो से स्मॉल में आ जाते हैं, मीडियम में आ जाते हैं, दे ग्रो. We had zero limits at some point of time. Right now we have exposure of more than 200 crores. But our no term loan, zero debt, 100% in stock. And that against is our market, our customers. That money is there. So we have no debts. In 25 years, I am telling you, since I know I have been doing my business, we have not delayed a single day payment to a customer, to our vendor, and single day payment when we need to pay to the bank. Single day delay. We have never went. We have never overexposed. We have never overcommitted. Never invested into fix what we have taken for our customers. It is some principles are extremely important to understand and create the pillar around you, which will give you a huge springboard to succeed. आप सोचिए ना, 20-30% अगर कमाते हैं, मार्जिन है, सिंपल मैथमेटिक्स है. अगर आप 20-25% एनालाइज कमाते हैं अपने प्रोडक्ट पर और आप 8%, 10% ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, खर्च कर रहे हैं ब्याज का, तो आपने और उस मनी को अगर 4 बार घुमा दिया तो 2.5% कॉस्ट आई उस मनी की, एंड यू आर अर्निंग 20%. इमेजिन, should we even really worry about? बैंक इज an important pillar, extremely important pillar. हमारा मार्जिन तो सिर्फ 2% है ऑयल में, only 2% we make in edible oil. Everybody makes only 2.5%. When they can survive, when you have a multiple times, you will draw it, you will rotate your money by 10 times, 12 times, 13 times. That's the key. How many times you can rotate your money in the year? That's the key, is important. Also worry about the compliances, and I would like to be aware that compliances are extremely critical nowadays. It can kill. You know, a GST issue 1:1 penalty है, आपको पता होना चाहिए. 1:1 penalty. आपने अगर 1 लाख रुपए की गड़बड़ी करी, not intentional, even by mistake, you will have a 1 lakh rupee penalty. Imagine, your entire business of that month is gone. This is the kind of, and if it comes 5 years later, you don't even realize entire business is gone. I know one of my known person, he used to earn 1.5 crore rupees a year. He has a notice of 3 crore rupees. Imagine how somebody will survive because of a small mistake of an accountant. So we need to be really careful. So another pillar which we have is compliance with the right partner. Good chartered accountant firm, good auditor firm, no compromise on that. Ensure that you have all the right compliances. Follow the law. It is extremely important. Regulatory loopholes should not be used. They are short term. They will kill at some point of time. It is extremely important that we follow what is guided by the professional and do it. It's a huge pillar. और ये सब जो पिलर फॉलो करता है उसको ही स्प्रिंग बोर्ड मिलता है टू लीप फ्रॉग टू द नेक्स्ट लेवल. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. हम कैसे फॉलो करते हैं? तो हम 4 चीज़ों को जो हैं वो फॉलो करते हैं, जो मैंने बताया है. ये हम प्रैक्टिस करते हैं रोज. हैव ए लार्ज टीम ऑफ
HR प्रोफेशनल्स. सो हर आदमी को लार्ज बनाने की दरकार नहीं है, लेकिन आपके में कोई ना कोई HR प्रैक्टिस, HR कंसल्टेंट, HR कंपनी जो आपको आउटसोर्स भी कर सकते हैं वो होनी चाहिए, जिससे हमारे को हमारी टीम को बिल्ड करने में मदद मिलती है. आई वॉज मीटिंग विद समबडी इन एक्सिस बैंक. ही इज़ देयर 27 years. 27 years in a one bank. We have people who are working last 40 years, 30 years, 35 years. If we do not build people who work for long run, is also not a good sign for the organization. And hence, the third pillar is the team. Team is extremely critical to build for long run. Build people around you who will work with you and stood by with you in a difficult time, wherever you are. Even if you are on a holiday, even if you are not well, even if you are having a daughter and son marriage, somebody is, with blindfolded, managing your business extremely well, managing his position extremely well. It is extremely important. That is extremely important to understand that you are only piece of that entire puzzle of business, one piece. But puzzle gets solved by all the pieces together. Team is a very important part of that puzzle. And fourth, I have already shared that, the digital adoption. We are lucky, and only side benefit of a corona is that we have digital adoption of masses. According to me, we have accelerated 1 decade in 2 years with digital adoption. जिनको सिखाना नहीं था वो सब सीख गए हैं, मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है, वेबसाइट को कैसे ऑपरेट करना है, और उनकी हिच भी ख़त्म हो गई है. सबने वैक्सीनेशन उससे कराया है, सबने व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिए हैं, सबने ऐप आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लिया है, सब समझ गए हैं कैसे काम करना है. लेकिन साथ में एक इशू भी आ गया है, वो है साइबर सिक्योरिटी का. साइबर सिक्योरिटी इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट which you should all remember, because somebody is interested to take some money out of your pocket, which is always true. तो 2 lessons साइबर सिक्योरिटी के. 1, अगर आपके पास में करोड़पति बनने की कोई स्कीम आए, आप लॉटरी जीत गए हैं, स्कीम आए, आपका बैंक अकाउंट के अंदर लॉक हो गया है, ये मेल आए, आपका ईमेल अकाउंट लॉक हो गया है, ये मेल आए, और आपको फ़ोन आ रहा हो या व्हाट्सएप आ रहा हो, ये मान के चलें वो फ्रॉड है. दूसरा रूल ये मान के चलिए कि कोई भी फ़ोन आपको कुछ देने के लिए नहीं आता है. आता है किसी के पास? लेने के लिए आता है. कोई देने के लिए नहीं आता फ़ोन. तो आपसे देने के लिए नहीं आएगा, आप चिंता ही मत करें. आपको जिसको लेना होगा वो आ जाएगा. जो देने वाला है, जो लेने वाला है, वही आपसे कुछ लेना चाह रहा है. आपको कहीं ना कहीं क्लिक कराएगा, कहीं ना कहीं पासवर्ड ले जाएगा, कहीं ना कहीं अटैक कर देगा और आपसे ले जाएगा. डू नॉट गेट इनटू ट्रैप टू बिकम रिच ओवरनाइट. यू विल नॉट बिकम. आई कैन गारंटी यू, यू विल लूज समथिंग. आई नो पीपल, टीचर्स, ब्यूरोक्रेट्स, नेताज, सब ने 5-5, 10-10 लाख रुपए ऐसे ही कमाए हैं. रात में 1 करोड़ बन जाएंगे, तुम तो अमेरिका में लॉटरी खुल गई है, और वो कभी कभी 500 रुपये, $1000 भेज भी देंगे आपको टू गेट यू ए ट्रैप. स्मॉल स्टोरी व्हाट्सएप पे घूम रही है. एक आदमी की कार चोरी हो गई और सुबह सुबह कार घर के बाहर खड़ी हुई मिली बाहर. उसमें नोट था एक कि मेरे पिताजी बीमार थे तो मैं आपकी कार ले गया क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे माफ़ करिए, आपको तकलीफ़ हुई होगी. मैंने गाड़ी में पूरा डीजल भी भरा दिया है, पेट्रोल फुल भरा के दिया है आपको, और मैंने 4 टिकट मूवी हॉल की भी दी हैं, आप फैमिली के साथ एंजॉय करें. जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए दे रहा हूँ. फैमिली चली गई मूवी देखने, रात को घर साफ हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट. Point you have to understand is you cannot take things on face. You have to be worried about that somebody is interested to take something out of you, is what I am trying to tell you. Nobody is interested to give you something. फ्री में जितनी चीज़ें आती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, ये मान के चलिए. When something is free, you are the product which is getting sold. Whether it is Facebook, whether it is Twitter, whether it is WhatsApp, you are the product.
थिंग्स आर फ्री। आप बिक रहे हो ना उसके अंदर, मैं बिक रहा हूं उसके अंदर, तो कहां दिक्कत है फ्री चलाने में? कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड आई विल एंड माई टॉक विद द टेक होरोस्कोप ऑफ 2023। टाइम हो गया भाई साहब? है? चलो जब बता देना मुझे बंद करना हो तो फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर कैसा दिखता है, टेक होरोस्कोप जो है हमारी क्या दिखती है। तो मैंने कुछ समय पहले टेक होरोस्कोप लिखी थी कंट्री की, एक मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है आप लोगों के साथ शेयर करूं कि टेक होरोस्कोप हमारी कंट्री की दिखती क्या है मेरी नज़रिए से। आप अपनी होरोस्कोप भी बना सकते हैं टेक की, और अपनी कंपनी की भी बना सकते हैं कि आपको अपना होरोस्कोप, टेक होरोस्कोप आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा दिखता है। एंड टेक होरोस्कोप इज अ गुड टर्म फॉर यू टू रीच टू राइट इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि मेरे को इस साल का होरोस्कोप, होरोस्कोप में क्या होता है, हमारा पास्ट तो देखते नहीं है, हम तो फ्यूचर ही पूछते हैं जिसको भी होरोस्कोप दिखाते हैं कि मेरा होरोस्कोप कैसा दिखता है, मेरा फ्यूचर कैसा दिखता है। तो आप अपने आप देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी में आपका होरोस्कोप कैसा दिखता है। तो मैंने 6-7 पॉइंट्स देखे हैं देश में जो होंगे ही होंगे, और आप उससे अछूते नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन करेंगी उनको उसके अंदर मजा आएगा काम करने का और बेनिफिट लेने का मजा आएगा। बेस्ट इंटरनेट एवर, वी विल गेट इट सूनर देन बिफोर। उसको कितना यूज कर पाएंगे, कितनी ताकत से यूज करना है, ये हमारे हाथ में है। हाईवे मिल जाएगा आपको जिसके ऊपर आपकी फरारी भी चल सकती है, बड़ी से बड़ी गाड़ी चल सकती है। 100 MB की स्पीड आपको मिलेगी, 200 MB की स्पीड मिलेगी आपको, 250 MB की स्पीड मिलेगी पर सेकंड, 2 Mbps, 250 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। विच मीन्स you can download a 1 gigabit file in less than 40 seconds। 8 बिट का 1 बाइट होता है, इसलिए मैथमेटिक्स आप कर लेना। लेकिन आपको जो सेकंड देखते हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 8 करके आपको 1 MB मिलता है। तो आपको 1 GB फाइल अप्रोक्सीमेटली आपको 40 सेकंड में मिल जाएगी। इमेजिन 40 सेकंड क्या होता है, 1 GB। When I started internet, it's an interesting fact for all of you to know. In 1999, I bought 2 MB. I am talking about you will get 200 MB in your mobile. I bought 2 MB to start my internet business. आपको वो 200-250 रुपये महीने में मिल जाएगा। मैंने कितने पे किया था, कोई गैस कर सकता है? अंदाजन ऐसे ही बताइए शैलेंद्र जी, 2 MB की क्या कॉस्ट होगी? आज 70,000 रुपये साल में हम बेच देते हैं। चलो मैं आपकी जिंदगी आसान करता हूं, 70,000 रुपये साल में तो हम बेच देते हैं हमारे कस्टमर को 2 MB की लीज लाइन। कितनी हुई होगी? कोई तो गैस करो यार, शांति से बैठे हो। वो तो ब्रॉडबैंड था, 4,000 रुपये महीने के लेते थे हम। 2 MB मैंने कितने में खरीदा? दैट्स माई क्वेश्चन। VSNL से खरीदा था, 70,000 में आज बेचते हैं तो कितने का हुआ होगा? 25 लाख। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है। और एनीबडी? ये उससे नीचे चले गए तुम तो। चलो बता देता हूं, सस्पेंस कर दे। 1,18,00,000। इसीलिए ABCD के पास इंटरनेट है। ऐसा कोई जना नहीं मिलेगा जिसके पास इंटरनेट नहीं है। इसीलिए है कि ऑलमोस्ट फ्री है। 1 घंटा इंटरनेट यूज करने की कॉस्ट लगा करती थी 60 रुपए घंटा, 60 रुपीज एन आवर। आज आपको 200-250 रुपए में सबको ही पूरा महीने का इंटरनेट मिल जाता है। जो 60 रुपए घंटे में तो 4 घंटे मिलते थे। और वाट स्पीड, आज आपको 200 MB की स्पीड मिल रही है। एट वाट स्पीड? 33.6 kbps, not even MB, kbps. So we have traveled the whole journey. मेरे हिसाब से we are in the most luckiest time of our life, luckiest time. And young generation should listen to me very carefully.
जब हमारे ग्रैंडफादर और फादर 47 के बाद आज़ाद हुए तो उनके लिए एक प्राथमिकता थी, सिर्फ एक, रोटी कपड़ा मकान हमारे परिवार को मिल जाए। दैट यूज्ड टू बी द प्राथमिकता ऑफ एवरी फैमिली इन द कंट्री। आप सोचो जब कंट्री की जीडीपी 3% है तो कुछ हो तो रहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपके पास में प्राथमिकता थी रोटी कपड़ा मकान की। तो हमारे ग्रैंडफादर्स ने बहुत मेहनत की। वी ओ द बिगेस्ट डेट इफ टू एनीबडी टू अवर ग्रैंडफादर्स who gave us the shelter, who gave us the food to our parents, and who gave us the clothes to wear. Our fathers, mostly graduate and less educated. You will agree with me. Fathers less educated, max graduate. Graduate पे तो शादी करनी है और धंधे पे लगाना ही लगाना है, कोई घर कौन चलाएगा? That used to be the priority around 30 years before. Now the next generation comes. Roti kapda makan is over, education problem is over, now the time to take risk. You are not worried about home, you are not worried about education anymore. That has been paid by your family. So now you, even if you fail, you have a backup to go home because your parents and grandfathers have done it for you. So it is the time to leapfrog, which your father and your grandfather could not do. It's the time to do it now. उनके पास न व्हाट्सएप था, न गूगल था, न नॉलेज थी, न इंटरनेट था, न पढ़े लिखे थे, न पैसे थे। आज वो सब कुछ मिल रहा है आपको, न इकोसिस्टम था, आज सब कुछ है। नई जनरेशन के लिए, जो यंग जनरेशन है, जो 25-30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनके लिए ये लकीस्ट टाइम है। एंड लेट मी टेल यू, पेंट द पिक्चर व्हाई। आज आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं जाना है, सब कुछ ऑनलाइन एक्सेसिबल अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, मेंटर्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं। बैंक को बोलोगे मेरा ये आइडिया है, दे विल गाइड यू। व्हेन आई स्टार्टेड नोबडी वाज देयर। बाय द वे, आई वाज द फर्स्ट ISP इन राजस्थान। इमेजिन हाउ यू एम्प्लॉय द फर्स्ट एम्प्लॉई। सोच के देखो आप, यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। हाउ डू यू गेट योर फर्स्ट एम्प्लॉय? फ्रॉम वेयर? Today, you have the luckiest time to start anything. You have employees, you have support, you have knowledge, you have Google always with you in your hand. The dream should take your sleep away. That's the dream which we have to live. Dream is not that what we see when we sleep. Dream is something which we will see while our eyes are open, and that is what we need to really worry about in days to come. Sufficient time है। YouTube, Facebook, आज की तारीख में अगर आपको 2020 से कंपैरिजन करें, सन 2000 से और आज 2020-22 में कंपैरिजन करें, आपको अगर विशाखापट्टनम में कोई माल बेचता था तो कैसे बेचते? सोच के देखिए। अमेरिका में कैसे बेचते? यहाँ आज पूरा वर्ल्ड ओपन है। World is a global village. Hence, it is extremely important to listen to that environment today, listen to that feeling today, and opportunity which is knocking your door. It is knocking. We are not just seeing it. It is flying all over. It is flying everywhere. मेरे हिसाब से मंदी की बात चल रही है इस देश, पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका, यूरोप, सब युद्ध चल रहा है, सब मंदी की बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वी आर हैविंग द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री, बिगेस्ट। अब एवरीथिंग विल ग्रो, दो द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। आज से 15 साल पहले हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, पूरा ग्लोबलाइजेशन, कि हमारा पूरा वर्ल्ड एक है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप नोट करेंगे तो डिस्कशन होने लग गया बाउंड्रीज पर। इंडिया कह रहा है मेक इन इंडिया, चाइना गूगल और फेसबुक को ऑपरेट नहीं करने देता है, दुबई ने वॉइस कॉल बंद कर दी है, रशिया ने MX को और वीज़ा को बंद कर दिया है। सो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग दैट द कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज, विच विल क्रिएट मोर लार्जर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक अस, because you will have difficulty
to go other somewhere else, but the consumption in the country will increase because of the domestic suppliers. People like us will do that, fill that gap. And there is a large opportunity which is coming in. And we never know that how the policies will make the difference, how the policies will make the difference. I already gave you an idea about 1700 सेंचुरी में और 1947 में हमारे पास में कितना बड़ा गैप आया बिकॉज ऑफ ए पॉलिसी. अभी जो पॉलिसीज़ बना रही है सरकार इस वक्त इंडिया में विद अ डिजिटल करेंसी, हाउ मेनी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर डिजिटल करेंसी टू एंटर इनटू योर बिजनेस? इससे मुझे ध्यान आया. डिजिटल करेंसी के बारे में सब जानते हैं. CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सपोर्टेड बाय रिजर्व बैंक. जो 500 रुपये का नोट है आपकी जेब में, वो 500 रुपये का नोट डिजिटल फॉर्म में होगा. ये चेंज आएगा. तो करेंसी आपकी जेब हाथ पर्स में नहीं होगी. 2000 रुपये का नोट 2000 रुपये के नोट में होगा. ये डिफरेंट है देन योर वॉलेट ऑफ पेटीएम. डोंट कंफ्यूज. वहाँ पर 2000 रुपये का नोट नहीं है, वहाँ 2000 रुपये हैं. बैलेंस है खाली. उस बैलेंस में से ट्रांजेक्शन करते हो आप. यहाँ पर नोट होंगे. वो नोट आप इशू करोगे कि 500 का नोट कितने देने हैं, 2000 का नोट कितने देने हैं, एंड दैट्स व्हाट यू विल ट्रांसफर एग्जैक्टली. दैट इज चेंजिंग. दिस विल चेंज एवरी बिजनेस इन द डेज टू कम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल चेंज एवरीथिंग. चैट जीपीटी के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत किसी ने? आप अकाउंट बना के उसके एक्सपेरिमेंट करके देखिए. पूछिए हाउ डू आई मेक ए बिजनेस प्लान, हाउ डू आई राइट ए लेटर टू द बैंक. आस्क योर क्वेश्चंस, इट विल गिव यू द होल लेटर रेडी. जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. मैं ये इसलिए करने कह रहा हूँ, आपके लिए शायद यूजफुलनेस ना हो, बट एक्सपेरिमेंट दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कितने लोग बोल करके डिक्टेट करते हैं अपने फ़ोन में? करते हैं आप लोग अपना लेटर हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, फ़ोन के अंदर डिक्टेट. एवरी फोन हैज़ दिस कैपेबिलिटी. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है. आपकी आवाज़ को पढ़ करके, समझ करके, उस भाषा में लिख देना इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इमेजिन कि अगर कोई जना टाइपिंग का इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट धीरे धीरे हिट होगा, क्योंकि आप बोल करके लिख सकते हैं. देयर इज अ प्रेडिक्शन बाय द वे that if you are an advocate, the whole petition which advocates write will be written by artificial intelligence. Whole petition. A doctor's prescription will not be written by doctor. This is the future which we are talking about as a part of the tech horoscope. Digital India Act किसने पढ़ा है? Digital India Act. थोड़ा पढ़ लीजिए. वी डोंट हैव मच टाइम टू गो इनटू दिस, बट दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्ट विच विल इम्पैक्ट एवरीबडी. इसी के साथ में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आ रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से, कि दिस विल इम्पैक्ट एवरी बिजनेस विच होल्ड्स ए कस्टमर डेटा. एंड आप सब लोग कस्टमर डेटा होल्ड तो करते ही हैं. मान लीजिए आप शेविंग के बिजनेस में हैं, रेजर्स और ब्लेड्स बेचते हैं, और आपको पता है कि राज समरिया जी मेरे वी पे डिलीवरी हैं, इनको आप एक रेजर बेचते हैं, ब्लेड बेचते हैं. दैट डेटा मस्ट नॉट बी लीक्ड टू एनीबडी एंड शुड नॉट बी मेड अवेलेबल टू एनीबडी इन एनी फॉर्म विदाउट हिज परमिशन. दैट इज द काइंड ऑफ लॉ विच इज कमिंग इन. सो आर यू अन अदरवाइज देयर इज अ, इवन इफ देयर इज अ लीक बिकॉज ऑफ अटैक and you have not taken adequate measures to protect it, you will be penalized. This is the new change which is coming in. Digital hygiene, जो मैंने आपको बताया कि आपको पैसे देने कोई नहीं आएगा, ये एक बार घर जाकर के देखने की दरकार है कि आपका जो डेटा है, जो आपकी सेल्स है, जो आपके कस्टमर डेटा है, जो आपका फिजिकल डेटा है, वो वास्तव में सेफ है क्या? आपको ये देखना है किसके पास उसका एक्सेस है. बैंक अकाउंट का एक्सेस किसके पास है? आपके कैमरे भी लगे हुए होंगे ऑफिसेज में, घरों में. उसमें एक यूजर नेम पासवर्ड होता है जो वो लगा के जाता है कैमरे वाला. कभी चेंज किया पासवर्ड आपने? तो वो भी अगर घर बैठे देख रहा है तो अपना बिग बॉस आपके घर का किसको पता है? ये डिजिटल हाइजीन का पार्ट है. वी शुड बी अवेयर दैट पासवर्ड जो हैं वो हमारे फाइनल प्रोटेक्शन नहीं है.
जैसा पासवर्ड मैं एक्सेस कर सकता हूं ऐसा कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मालूम पड़ा आपका लाइव ऑफिस का चल रहा है, उसको तो पहले ही पता है, आप पूछने की दरकार ही नहीं है कि कौन आया कौन गया, वो कंपटीशन के पास भी हो सकता है। तो इमेजिन दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस आर कमिंग इन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ड्राइवरलेस कार्स एंड ट्रक्स इज नॉट वेरी फार। इंडिया में हो सकता है 23 में नहीं आए, लेकिन 24 में तो पक्का आ जाएगा। ड्राइवरलेस कार्स एंड ट्रक्स विल अगेन चेंज एवरीथिंग। ट्रक्स विल ड्राइव 24/7, 24 आवर्स, नो नीड ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर को रेस्ट लेने की दरकार नहीं है, खाना के लिए रुकने की दरकार नहीं है ढाबे पर। सो नाउ इमेजिन यू हैव ड्राइवर्स, इमेजिन हाउ इट विल इम्पैक्ट द ढाबा। सोच के देखिए आप, अभी जो ड्राइवर रुकता है ढाबे पर, उस ट्रक को रुकने की दरकार ही नहीं है, तो ड्राइवर से नहीं जाएंगे उसमें, तो वो रुकेंगे ही नहीं। रुकेंगे नहीं तो इट विल इम्पैक्ट। हो सकता है इस साल नहीं रुके, 2025 में इम्पैक्ट आए, 26 में इम्पैक्ट आए, बट दे विल बी इम्पैक्टेड एंड दे कैन नॉट इमेजिन राइट नाउ व्हाट इज कमिंग, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है। जब धीरे धीरे कंज्यूमर कम होने चालू होंगे, सोचेंगे ट्रक तो निकल गए यहाँ से, रुका तो कोई है ही नहीं, तब मालूम पड़ेगा कि ये तो वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स in a very, 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 very important way and see that we adopt to the change. So the last word which we should remember is be aware. Do not take it granted कि आपका सब सही चल रहा है, बहुत अच्छा है, सही चल रहा है, we are lucky and I am sure जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका अच्छा ही चल रहा है। तभी हमारे पास ये टाइम होता है सुनने का, बात करने का, विचार विमर्श करने का, देखने का। लेकिन हम इसको सही रहे और बेटर कर पाएँ, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वी आर अवेयर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट्स हैपनिंग विद इन अस। विद दिस let me tell you the last what data engineers, our IT company is doing on implementation part of large projects which allows us to do lakhs of transactions every day. So I am part of iSprit. If you have heard iSprit, have you heard about Aadhaar? सबने सुना ही होगा आधार, तो यूपीआई भी सुना होगा। इन दोनों की जो बैकबोन है वो iSprit है। iSprit is a volunteer-led organization. I am one of the founders of that organization that created the framework of the entire architecture of UPI in this. Do you know how many transactions happened in country of UPI in November 2022? Guess a number. बैंक वालों को तो पता होगा, है थोड़ा आइडिया? नहीं है? कितनी? 20 करोड़। अच्छा, बहुत दूर हो आप तो। 800 करोड़। 130 करोड़ की जनता है, 800 करोड़ ट्रांजेक्शन्स आर हो रही हैं। ये ट्रांजेक्शन्स पहले कैसे हो रही थी? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट चेंज इज कमिंग इन द कंट्री, वी डोंट इवन रियलाइज। ये ट्रांजेक्शन्स पहले कैसे हो रही थी? सारी पैसे एक्सचेंज करके हो रही थी, या चेक्स के माध्यम से हो रही थी, या तो कैश दिया जा रहा था गोलगप्पे वाले को, ऑमलेट वाले को, चाट वाले को, बार्बर को कैश देते थे, या अपन अब डिजिटल हो रहा है। तो 800 करोड़ ट्रांजेक्शन पे पहुंच गया है। अगर आप डिजिटल अडॉप्शन पे नहीं आए हैं तो इट विल इम्पैक्ट एवरीबडी। आई थिंक आई एम गेटिंग द इशारा टू शट डाउन नाउ। Thank you very much for your time. Thank you for listening me patiently very well. Thank you very much for the opportunity. So, thank you, Mr. Ajay Datta, for sharing such valuable insights. I am sure this will help each of us go a long, long way. So, now I will open the floor for questions and answers. You can ask your questions from Mr. Ajay Datta. He had already told us the importance of change, the importance of adoption, the importance of bringing in technology in our business, and be aware to, if we even want to stay where we are, we need to run. So please ask your questions from Mr. Ajay Datta and have his views. Thank you. जब से ये डिजिटल डाटा ट्रांजैक्शन आए हैं, इसकी अपनी कॉस्ट है। पहले कैश ट्रांजैक्शन होता था, 100 का नोट 100 में ही चलता था। अब 100 रुपये का पेमेंट करते हैं, 98 रुपये पहुँचते हैं, उसके बाद 2 रुपये चार्ज लग जाता है। तो ये क्या बेनिफिशियल है?
आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं शायद। नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन आप आरटीजीएस करा लो, नेफ्ट करा लो। पहले 1 रुपये का चेक आता था, अब 42 रुपये डेबिट होते हैं। सो देखिए, कोई भी सर्विस, तो चेक और रुपया तो पहले भी था। चेक अभी इसने जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को कंपेयर करा है, वो दो चीज़ों को कंपेयर करा है। छोटे ट्रांजेक्शन्स को जो आप 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये देते थे यूपीआई, वो कम्प्लीटली आज भी फ्री है। एंड मेरे को लगता है कि ये कभी फ्री रहने वाली है। चार्जेबल करने में सरकार को भी बहुत जोर पड़ेगा, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो छोटे ट्रांजेक्शन्स थे, खुदरा ट्रांजेक्शन्स थे, वो सब अभी फ्री हैं। दे हैव जस्ट ट्रांसलेटेड। बट फ्री का मतलब फ्री नहीं है। आई विल नॉट डिसएग्री वट यू आर सेइंग। फ्री का मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मेरा डेटा लग जाता है, मेरे को फ़ोन चाहिए होता है, मेरे को इंटरनेट चाहिए होता है, मेरे को उसके अंदर प्लान चाहिए होता है, देन ओनली आई कैन डू द ट्रांजेक्शन, राइट? आई नीड एन अकाउंट, आई नीड एन SMS टू कम इन. So I agree with you, there is a cost associated with it. But cost तो हर चीज़ में लगती है. There is a cost associated with the management of the cash also. हमको वो लगता नहीं है. आज आपने को मेरा देखने का जो नज़रिया है वो ये है कि हम कोई भी चीज़, आज आप घर में 1 करोड़ रुपए कैश है, 10 लाख रुपए कैश है, उसकी मैनेजमेंट की एक एफर्ट है, एक कॉस्ट है उसकी मैनेजमेंट की. वो इतना आसान नहीं है. फेक करेंसी भी हो सकती है, फटा हुआ नोट भी हो सकता है, बैंक भी जाना पड़ता है, देन लेके भी घूमेंगे आप जेब में, सिक्योरिटी भी रखनी है. वही चीज़ अगर जब डिजिटल कन्वर्ट हो जाती है, और जो ये CBDC का जो ध्येय है वो है भी यही कि हमारे को वो ट्रांजेक्शन 500 रुपये का 500 रुपये में ही चले, लेकिन हमारे को जो उसके मैनेजमेंट की कॉस्ट है, जो कैश को छापने की कॉस्ट है, जो सरकार की कॉस्ट है, वो लग जाए. इसमें दूसरा एंगल और है जो हमको सबको दिमाग में रहना चाहिए. वो ये है कि कॉस्ट चाहे कैश की हमारे हाथ में नहीं रखती, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे रिकवर होती है सरकार के द्वारा. क्योंकि सरकार जब उस नोट को प्रिंट करती है तो वो फ्री में नहीं छपता. वो जो कॉस्ट है 100 रुपये का नोट, उसकी छापने की कॉस्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की कॉस्ट है, उसको मैनेजमेंट की कॉस्ट है. तो वो कहीं ना कहीं सरकार हमसे चार्ज कर ही लेती है. कहाँ से करती है वो अलग बात है. सरकार पहले भी चार्ज कर ही रही थी और वो अभी भी कर रही है. कहीं डिडक्शन तो दिया नहीं उसने. नहीं, डिजिटल में खत्म हो जाएगा ना वो. नहीं, लेकिन डिजिटल की तो अपनी कॉस्ट है. हाँ, वो तो रहेगी. हाँ, तो आपको वो जो ये अपना ग्रोथ वाला पार्ट है, इवॉल्व वाला पार्ट है ये, कि हमको इवॉल्व किस तरीके से होना है. तो फास्टर है आज की तारीख में. यू नीड नॉट टू कैरी कैश, सिक्योरिटी है, उसके जो अपने बेनिफिट्स हैं डिजिटल के, वो अपने को सबको पता है. और इसीलिए शायद मेरे ख्याल से ये एक आम आदमी इसको अडॉप्ट कर रहा है जो 800 करोड़ पे पहुंच गया. वो नंबर डिपिक्ट करता है कि पीपल आर परफेक्टली ओके टू मूव इन टू दैट एरिया. अगर कोई कंपल्शन नहीं है पे करने का, गोलगप्पे वाले को आप 50 रुपये कैश आज भी दे सकते हैं, बट पीपल आर पेइंग मोर ऑन डिजिटल वे राइट नाउ. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. बट आई थिंक दिस इज द वे फ्यूचर विल इवॉल्व. वी हैव नो अदर चॉइस, because currencies will go away. I went to go to US. अगर कोई भी इंटरनेशनल जाएगा तो आपको कैश ट्रांजेक्शन जो है वो 5%, 6% ज़्यादा नहीं मिलेंगे. 90% अबव इज अ डिजिटल ओनली. गवर्नमेंट ने इतना काम कर दिया UPI से, क्रेडिट कार्ड की बजाय UPI ले आया. तो क्रेडिट कार्ड पे जो आपको MDF चार्ज लगता था वो फ्री हो गया, उसकी जगह UPI हो गया. ऐसे ही बोल लो. For example, if I talk about INR, currently it is approx 80-82, right? Earlier it was 50-60. So because I am running a IT business, so it is beneficial for me. But because I am living in India, and there are so many things are getting impacted because of this, getting very down in the INR currency. So how do you see about the value of currency of our country? How it is gonna impact of our growth? So मेरे हिसाब से मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन जितना मेरे को समझ आता है एक्सपोर्ट बिजनेस का जो हम करते हैं, वी वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर लास्ट ईयर विद ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज़ एक्सपोर्ट वी डिड. मेरे हिसाब से जो ये डॉलर से इसका कनेक्ट है आज की तारीख में, ये विद ईयर्स टू कम विद द पॉलिटिकल चेंजेस इट शुड रिड्यूस the dependence on dollar. That is the only answer the country has, and that is how the country has allowed to do the transaction in INR with certain countries already. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken the step accordingly. जैसे जैसे वर्ल्ड में डॉलर का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा,
वैसे वैसे हमारे को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो जो लोग आर्बिट्राज में नहीं जाना चाहते, जो लोग फ्लक्चुएशन में नहीं जाना चाहते, वो लोग इस रूट को अपनाएंगे कि मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा, मुझे तो 1 लाख रुपए आ जाएं, मुझे डॉलर में क्या हो रहा है आई डोंट केयर। जिस दिन हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे उस ट्रांजेक्शन में, वो ऑलरेडी अवेलेबल है बाय द वे टुडे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये अवेलेबल है, यूएस के लिए अवेलेबल नहीं है अभी, यूके के लिए अवेलेबल नहीं है अभी, बट मेरे को ऐसा लगता है धीरे धीरे आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, मान लो यूएस में तो हमेशा डॉलर ही होने वाला है, तो यूएस डॉलर तो चलने ही वाला है वहाँ पर। मुझे नहीं लगता है कि यूएस डॉलर कभी भी ये कहेगा कि आईएनआर में डील कर लो, और यूके कहेगा कि आप स्टर्लिंग पाउंड में मत करो, तो वहाँ पर भी आईएनआर ले लो। लेकिन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वो सब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगी और एज एन ऑप्शन दे देंगी आपको। और हो सकता है प्लान में जब पॉलिटिकल रिलेशंस बनते हैं, दो बिगेस्ट नेता आपस में बात करते हैं, तो हो सकता है ये भी अलाउ हो जाए कि यूएस डॉलर भी और आईएनआर भी अलाउ कर दो। लेकिन इसका फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट जो है वो तो आना ही है। सो सर, नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो जो एक एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है या होने वाला है, ये भी एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का। बिल्कुल है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, दैट्स द फ्यूचर। एंड ये सब इवॉल्विंग के तरीके हैं, दैट्स वन ऑफ द मैकेनिज्म। ये सब एक ओवरनाइट सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम, लेकिन ये फुट स्टेप्स हैं उनके लिए, उस रास्ते के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ना, सामने इंटरनेट जब चालू करा था तो कुछ somebody could argue 60 रुपए घंटे का इंटरनेट चाहिए क्या इस देश को? Somebody could argue that. तो why to start internet? Correct? Somebody could argue that point. लेकिन आज हम उस स्टार्ट से कहाँ पहुँच गए? Can we imagine a life without internet now and in future? तो हम somebody could argue that. तो ये इवॉल्व जो सोसाइटीज होती है वो ऐसे ही होंगी कि हमारे को कहीं ना कहीं से एक स्टेप लेना पड़ेगा, एंड सम बिग लीडर विल टेक। उससे पहले प्राइवेटाइजेशन ही नहीं था, 98 से पहले इंटरनेट का प्राइवेटाइजेशन नहीं था, तो यू कुड नॉट इवन स्टार्ट द इंटरनेट। दैट्स हाउ प्राइवेटाइजेशन गॉट ओपन। अटल बिहारी वाजपेयी जी ओपन दिस एंड वी स्टार्टेड 1999। उससे पहले इवन इफ आई वांटेड आई कुड नॉट स्टार्ट, इट डजंट मैटर व्हाट एक्सपेंस। तो ये जो चीज़ हैं धीरे धीरे इवॉल्व की तरफ हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है बाउंड्रीज बढ़ रही हैं और बाउंड्रीज ब्लर होंगी धीरे धीरे। Boundaries will not remain there from the business and technology perspective. Already broken है इंटरनेट की वजह से। आपको पता थोड़ी होता है कि अमेजन की आप किस सर्वर पे एक्सेस कर रहे हो आज, किसी को नहीं पता होता ना। वो हो सकता है दुबई में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, कहाँ पे हो, अपनी इतनी सारी फेसबुक है, कहाँ है, आपको कहाँ पता है किस सर्वर पर है? तो बाउंड्रीज तो ऑलरेडी ब्लर्ड हो चुकी है ना। आपको गवर्नमेंट की साइट ही नहीं पता है कहाँ पर होस्टेड है, किस सिटी में होस्टेड है, आपको नहीं पता है। तो ये boundaries are blurred right now, and boundaries will further blur with the time to come. Hence, it is important to be aware about the evolvement of the environment around us. अगर हम उसको ध्यान में रखेंगे तो मेरे को लगता है कि अपना जो एरिया है फ्यूचर है, जो हमारे बिजनेस का फ्यूचर है, आपका टेक का बिजनेस का जो फ्यूचर है, उस पर अगर अपन लगाएंगे कि मेरे लिए कौन सी पॉलिसी हेल्पफुल है और मेरे को कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं आ रही है जिसके लिए मुझे अडॉप्ट होना है। दैट्स द मैसेज आई वांटेड टू गिव टुडे, कि मेरे को उस पॉलिसी पे ध्यान रहना चाहिए कि वो पॉलिसी मेरे को हिट ना कर दे अचानक। एंड आई लाइक ब्लैकबेरी डिडंट रियलाइज व्हाट्सएप विल किल इट, करेक्ट? बाय द टाइम दे रियलाइज इट वाज टू लेट। छोटी सी चैट ऐप ही तो थी जिसका कोई फोन ही नहीं था। Hence, it is important to think it that way, to be aware about biggest we can be die. So we are very small. सबको समझ में आ गया तो अच्छा है। Done. Sir, just a last one. Yeah. Please go ahead. First of all, sir, thank you very much for coming here and guiding us. Sir, my name is Vishal, and I'm also in a manufacturing of edible oil business. Sir, I just want to ask you something that it is a very labor-oriented work. Manufacturing unit requires unskilled and semi-skilled laborers. So there are very limited areas in which we can use digital systems, artificial intelligence, IoTs. So you are also into manufacturing concern of edible oils. If you can share some areas in which you have applied digital systems. So मेरा मानना ये है कि हम आपने मयंक बताया ना आपका नाम? विशाल. विशाल हमारा जो one of the problem we should get out of it is blocking our own self कि ये नहीं हो सकता या implement नहीं हो सकता। हम सबको उससे बाहर आना पड़ेगा
शायद जैसे तुम सोच रहे हो ऐसे हम भी ऐसा ही ऑयल में, हमारा नॉन टेक जितने भी फैमिली मेम्बर्स ऐसा ही सोचते थे कि ये डब्बे काउंट कैसे होंगे, ये तो लेबर ही काउंट करेगी। बॉटल काउंट कैसे होंगी, 5 लाख बॉटल रोज बनाते हैं, काउंट कैसे होंगी, हो ही नहीं सकती है, कभी हिसाब मिलता ही नहीं था। कितने जो ट्रक में माल लोड हुआ उसमें वास्तव में माल कितना है और ट्रक का लोड कितना है, इसका सिस्टम ही नहीं था। आपका ट्रक जा रहा है, सोच के देखिए आप सब लोग कि ट्रक इज गोइंग आउट ऑफ फैक्ट्री एंड ऑब्वियसली व्हेन इट विल गो टू द वे ब्रिज इट विल हैव द ट्रक लोड and the material load both, right? So how do you match with your invoice? What is process? जो उसमें 1500-1600 कार्टन हैं, वो जो कार्टन्स हैं उनमें वही SKUs हैं जो आपने लोड किए थे। ये सब बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। हमारा विल चाहिए उसको कि उसके लिए एंड विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इनटू दीज थिंग्स। आपने एडिबल ऑयल में तो आपने देखा होगा जो पैकेजिंग्स मशीनरीज हैव रिमूव्ड मैन पावर एंड इट हैज़ इंक्रीज कैपेसिटी, बट इट इज़ अ मैकेनिकल इनपुट ऑफ द मशीनरी, करेक्ट? इमेजिन दैट दीज थिंग्स कैन बी डन विद द टेक्नोलॉजी, कि उसके अंदर कोई मक्खी नहीं हो तो टेक्नोलॉजी पकड़ ले, बॉटल खाली तो नहीं है तो पकड़ ले, रैपर सही नहीं लगाया तो पकड़ ले, ढक्कन लीकेज है तो पकड़ ले, लीकेज है अगर गार्डन में तो आपको पता पड़ जाए। ये सब माल शिप करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रोबोटिक मशीनें कर सकती हैं। ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन। तो जस्ट टू आंसर यू एंड यू कैन इमेजिन, आई वेंट टू ब्राज़ील विद द प्राइम मिनिस्टर डेलीगेशन। सो हमको उसमें मौका मिला एक वहाँ की कॉस्मेटिक कंपनी देखने का एज ए पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। कॉस्मेटिक कंपनी, 800 प्रोडक्ट है उनके, 800 SKUs, अपने नहीं है इतने SKUs, 800 SKUs हैं छोटे छोटे। उनके यहाँ पर सिर्फ 20 आदमी हैं रोजाना 15,000 शिपमेंट करने के लिए, और उनके शिपमेंट होते हैं ई कॉमर्स से सारा डील करते हैं, 15,000 शिपमेंट रोज करते हैं, छोटे छोटे से डब्बे बनते हैं, कंप्लीट वेयर हाउसिंग, कंप्लीट स्टॉकिंग इज ऑटोमाइज्ड 100%। 20 मंजिल की स्टॉकिंग है, 20 फ्लोर्स की स्टैकिंग है। 20 फ्लोर्स का मतलब फ्लोर नहीं है जो हमारी बिल्डिंग में होती हैं, एक के बाद एक रैक, एक के बाद एक रैक, लाइक दैट 20। तो आदमी तो उतार नहीं सकता है वहाँ से, आदमी को पता भी नहीं इस रैक के अंदर क्या है, और अगर बीच की निकालनी भी है तो निकालेगा कैसे, ऊपर का क्या करेगा, नीचे क्या करेगा, रखेगा कहाँ? कंप्लीट ऑटोमाइज्ड। सो दिस गिव्स मी अ थॉट प्रोसेस व्हेन यू सी दैट यार जब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक एक आइटम उस रैक में से एक पीस निकाल के ले आती है आर्म और जाकर के डब्बा बना देती है और वो पैक होकर के बाहर निकल जाता है विद अ लेबल जस्ट टू फॉर कोरियर वाले टू टेक इट। वहाँ पर 10 लोग इस काम के लिए हैं कि कोई रोबोटिक आर्म अटक जाए तो उस पोर्शन को बंद कर दें कि वहाँ पर वो आर्म ना चले और उसको सही कर लें, दैट्स ऑल। वहाँ पर कोई फुलफिलमेंट के लिए कोई आदमी नहीं है, पैकिंग के लिए कोई आदमी नहीं है, काउंटिंग के लिए कोई आदमी नहीं है, बिलिंग के लिए कोई आदमी नहीं है। इमेजिन 15,000 शिपमेंट इन अ डे विद 20 पीपल। Sir, I want to support your point here. Actually, we recently developed a software for a company called Goodwill in USA, and our software is supporting there to managing their complete warehouse management. Also, it is generating the barcode that can place on their systems, and it automatically we are also tracking that which item is placed at which location, which aisle, which street. ये लो आपके पास कस्टमर है और आपके पास में यूज केस है, देखो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। He just conveyed his message indirectly. So perfect. So this is the way we have to look at the moment we break our boundaries कि what is possible not possible. I can tell you IT में टेक्नोलॉजी के अंदर जो आप नहीं सोच सकते हैं वो होगा। और आपकी बात का एक आंसर और दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ ही संभव है। नाउ 3D प्रिंटर्स कैन प्रिंट बोन ऑफ द ह्यूमन। तो अगर किसी की बोन क्रश हो जाए एक्सीडेंट में तो उसको बोन कैसे लगेगी, कहाँ से आएगी वो बोन? अगर यहाँ तो अभी क्या करते हैं, रॉड डालते हैं, राइट? अब नाउ एक्चुअल बोन प्रिंट हो सकती है, एक्चुअल बोन which will not be any different in a composition than the human bone. The human skin can be printed by the printer. Can you believe all these things now happening? And they are all experiment stage already. They are now tested.
प्रिंटर्स आर नाउ प्रिंटिंग गन। आपको वार में कैरी करने की दरकार नहीं है गन, प्रिंटर ले जाओ वहां पर वो प्रिंट करता रहेगा गन्स। नाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑलरेडी। जो मैं बात बोल रहा हूं ये आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे वीडियोज एंड एग्जाम्पल्स। सो टेक्नोलॉजी इज मूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, वेरी फास्ट पेस। चैट जीपीटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप करके देखोगे तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा एआई कैसे कर रहा है, रोबोटिक्स किस तरह से चेंज हो रही है। बॉस्टन डायनेमिक्स के गूगल कर लेना आप लोग, आपको उसके रोबोट्स देख के मजा आ जाएगा। बॉस्टन डायनेमिक्स यूट्यूब पे देखिए आप उसके वीडियोस। इट कैन डू ए रिवर्स फ्लिप, ए रोबोट कैन डू ए रिवर्स फ्लिप। कैन यू बिलीव दैट? आदमी तो कर नहीं सकता है रिवर्स फ्लिप, हम में से कोई नहीं कर सकता रिवर्स फ्लिप। A robot can do a reverse flip. It is now trained to fight in like an army. Imagine you need army people. Nobody will die. You have million robots on the border. ना ठंड लगेगी, ना पसीने आएंगे, ना चाय पिलानी है, ना गर्मी जलानी है, ना कपड़े पहनाने हैं, फिर भी बॉर्डर प्रोटेक्टेड है। Imagine. तो आप सोचो ये सब चीज़ें होनी हैं। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है अवॉइडेबल नहीं, ये सब चीज़ें होनी है। और ये अगर आप उसके बिजनेस से कहीं कनेक्टेड हैं तो ये सब चीज़ें आपको इम्पैक्ट करने ही वाली हैं। हमको सिर्फ अवेयर होना है एंड बी रेडी विद दिस चेंजेस। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट लेख इन्होंने हाथ उठाया। It is the largest populated country now. So what will you think of it? Like it is somehow creating a lot of unemployment itself. When you bring out digitalization, that you said that sir mentioned that he made a software where he used to put barcode and mechanism is working. And from a manufacturing aspect, we have a lot of labor people oriented in it. And if you mention that a lot of machinery can help everything, it can be efficient and it will provide you with quality products in quantity. But it is also somehow causing a lot of unemployment. So then how do we What is take your care name? of that? Shaurya. शौर्य, जब आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो जब आप कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, वही आदमी दूसरा काम कर रहे होते हैं। बैंक में कंप्यूटराइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, बैंक की कैपेसिटी टू सर्व मोर कस्टमर्स हैव गॉन अप, क्वालिटेटिव ऑफ डिलीवरी हैज गॉन अप। कंप्यूटराइजेशन से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी कमिटमेंट टू द क्वालिटी एंड द कस्टमर डिलीवरी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें बढ़ेंगी आपकी, आपको पीसफुल स्लीप आएगी। You will have a predictable future. Technology will give you. But you will not stick to that place. When you will have time, जो आज आपका टाइम वेस्ट हो रहा है काउंटिंग में, मैनेजमेंट में, वो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप उसको अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा मिल जाए आपको, तो आप मूवी देखने में वेस्ट थोड़ी करने वाले हो उसको, आप उसको प्रोडक्शन बढ़ाने में काम लगाओगे। तो आपको you will automatically as an entrepreneur, you will land up into a situation where you will multiply your business to 1x to 3x to 5x. And that is the whole objective of this conference today. That's the next growth engine. So digital adoption करने से आपका unemployment नहीं बढ़ रहा, employment बढ़ रहा है कंट्री के अंदर because of a different region. Let me share that with you also. But which is a good sign from my point of view, not a bad sign. वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आपका डिजिटल अडॉप्शन डज नॉट रिड्यूस द मैन पावर, इट हेल्प्स यू टू ग्रो फास्टर एंड कंज्यूम दैट मैन पावर फॉर योर ओन बेटर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, मैं इसको एज ए गुड न्यूज़ लेता हूँ। आई विल टेल यू व्हाई। एंड इसमें थोड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री है कि हमारे यहाँ नॉर्मली 20 साल पहले की बात करते हैं खाली, और जो इस एज ग्रुप में है वो समझ जाएंगे। 20 साल पहले फीमेल का जॉब करना, हमारे मेंबर्स का, फीमेल मेंबर्स का जॉब करना वाज ए वेरी लेस नंबर्स। तो घर की जो फीमेल हैं वो काम नहीं करती थी, एंड वी नो दैट राइट। हमारे घर में जितने भी फीमेल्स हैं देख लीजिए उनका रेशो क्या था और आज क्या रेशो है। तो द सीकर्स ऑफ जॉब फ्रॉम फीमेल हैव इंक्रीज्ड. That is why we see the increased unpopulated, unemployed number
But that is not true from the, if you compare from the sex ratio perspective. That's it, that number can deceive you. Because उसमें हमारी 50% जो मैन पावर है, जो वुमेन की है, वो हमारी अब काम करना चाहती है, वो जॉब मांग रही है, जो आज से 15 साल पहले वो नंबर्स नहीं थे, अब वो मांगने लग गई हैं. They want to work, which is a great thing, right? They want to work. So if they want to work, they will get added into that category of unemployment. So the numbers of unemployment is not increasing because of digitization. It is increasing because of a different reason I have just told you. The numbers may not be telling you the correct picture. We need to go more deeper to see that correct picture. In the interest of time, can we take the rest of the questions offline? Thank you very much. Please be on the stage. So thank you, Mr. Ajay Datta, for answering the questions raised by our guests and sharing his perspective on the same. Now I would request to Mr. Shailendra Sidhai and Mr. Montu Bhartia to come on stage and give a bouquet of thanks to Mr. Ajay Datta for sharing such valuable insights.